چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ ہماری تجوید القرآن کورس کی آج 12th کلاس ہے۔ پچھلی کلاس جو ہماری سنڈے کو ہوئی تھی اس میں ہم نے سب کچھ ریوائز کرنے کی کوشش کی تھی، تو آج کی کلاس انشاءاللہ پڑھنے کے بعد آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں معلوم ہوں گی جن کی وجہ سے ہم قرآن کریم کو زینت بخشتے ہیں، اس کی وائس اچھی وائس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا حکم بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے زینت بخشو۔ تو اس زینت بخشنے کے لیے ہم اپنے من میں جو طریقہ ہے وہ نہیں اپنانا ہے، بلکہ جو تجوید کے قوانین ہیں، رول ہیں، ان کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم پہلے ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں قرآن کریم کی فضائل پر۔ یہ حدیث سنن دارمی میں ہے، حدیث نمبر 3358، عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض وما فیہن، فرمایا کہ بے شک قرآن اللہ تبارک و تعالی کو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہمیں اگر کوئی چیز پیاری ہوگی، ہمیں کسی چیز سے محبت ہوگی، پھر اگر اس چیز کی کوئی توہین کرتا ہے یا ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے یا اس کو اس کا حق نہیں دیتا، فار ایگزامپل کسی ماں کو بیٹے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تو اس کے بیٹے کا نام اگر کوئی بگاڑے تو اس ماں کو کتنا برا لگتا ہے، بلکہ بسا اوقات لڑنے پہ اتر آتی ہے مائیں۔ تو آپ یہ سمجھیے جو کلام پاک، جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کو زمین و آسمان کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے، اگر اس قرآن کو ہم اس کا حق نہیں دیں گے، اس کو صحیح نہیں پڑھیں گے جیسے اللہ تعالی نے اتارا ہے، جیسا اس کا تقاضا پڑھنے کا ہے، جیسا اس کا حق ہے پڑھنے کا، تو اللہ تعالی کو کیسے یہ خوش ہوگا؟ تو اللہ تعالی اس سے خوش نہیں ہوگا کہ ہم قرآن کو غلط پڑھیں۔ اس لیے قرآن کریم کو درست پڑھنے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں، قرآن کریم کو درست پڑھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ تجوید القرآن کورس اسی کی ایک کڑی ہے۔ تو حروف مدہ کی جو ہم بات کر رہے تھے، حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ ہوتا ہے جب الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ ہوتا ہے جیسے با الف زبر با۔ واو مدہ ہوتا ہے جب واو ساکن سے پہلے جیسے با واو پیش بو۔ اسی طرح یا مدہ ہوتا ہے جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے با یا زیر بی۔ یہ ہو گئے 3 حروف مدہ۔ اس طرح حروف لین ہے، حروف لین ہے واو لین اور یا لین۔ واو لین کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو، واو ساکن یعنی جزم والے واو سے پہلے۔ اس طرح یا لین کب ہوگا؟ جب یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگی، تو یہ ہوگا یا لین۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، واو لین اور یا لین، یہ آپ کو سمجھ آ گئے۔ اب ہم آگے چلیں گے کیونکہ یہ ہمیں ضرورت لگیں گے، یہ آپ یاد رکھیے گا، الف مدہ کب ہوتا ہے، واو مدہ کب ہوتا ہے اور یا مدہ کب ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اصل ٹاپک پہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے مدات۔ ابھی تک ہم نے حروف مدہ پڑھتے، اب ہمیں مد پڑھنے۔ جیسے حروف مدہ پڑھتے وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا مد کے معنی کیا ہوتا ہے، کھینچنا۔ تو یہاں بھی میں نے یہی لکھا ہے، مد کے معنی ہوتا ہے کھینچنا، ٹو پرولونگ، لینگتھن اور اسٹریچ، کسی چیز کو کھینچنا، لمبا کرنا۔ تو ہم کیوں کھینچتے ہیں کسی چیز کو، حروف کو ہم کیوں کھینچتے ہیں، کسی جگہ ہم کھینچ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کے 2 ریزنز ہیں، مد کے اسباب، یہ آپ یاد رکھیں گے۔
मद के असबाब दो हैं, एक है हमजा और दूसरा है सुकून। एक क्या है? हमजा, ये पहला सबब है हुरूफ को खींचने का, ये है पहला सबब। और दूसरा है सुकून, ये है दूसरा सबब। दो रीजंस है मद के, यानी खींचने के दो रीजन है, एक है हमजा और दूसरा है सुकून। सुकून का मतलब होता है जज्म। जज्म को लिखने के दो तरीके मैंने आपको बताया, एक तो ये तरीका, एक ऐसे भी लिखा जाता है, डिग्री सेल्सियस जैसे हम डालते हैं ना सी के ऊपर, तो वैसे भी लिखा जाता है। ये दोनों जज्म है, ठीक है। ये दो चीजें आपको समझ आ गई। जहां भी मद होंगे, जो नीचे मैंने मद की टाइप्स लिखेंगे, ये मद होंगे दो रीजन की वजह से, या हमजा की वजह से होंगे या सुकून यानी जज्म की वजह से होंगे, ठीक है। तो हमजा की वजह से जो मद होंगे वो दो होंगे, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, हो गई दो। यानी मद, टोटल मद है छह, कितने हैं? हम लिख के रखेंगे यहाँ पे, 6 टाइप्स ऑफ मद है, लिखेंगे। टाइप्स ऑफ जो मद है वो कितने? 6 है। तो 6 टाइप्स में से दो हमजा की वजह से है, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल। ने कहा कि मद की दो टाइप्स हैं, एक है मद की दो रीजंस हैं, असबाब हैं, एक है हमजा, दूसरा है सुकून यानी जज्म। तो हमजा की वजह से दो मद होती हैं, एक मद मुत्तसिल और एक मद मुनफसिल। तो इसी तरह सुकून की वजह से चार होती हैं, तो हो गई मद लाजिम, मद लीन लाजिम, मद आरिज, मद लीन आरिज। ये 6 टाइप्स ऑफ मद बन जाती हैं। अब इन 6 टाइप्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहां तक आपको समझ आ गया? पहले मैंने बोला मद का मतलब होता है खींचना। मद के दो सबब हैं, यानी जिसकी वजह से हम खींचते हैं, उसके दो रीजन है, एक है हमजा की वजह से खींचना पड़ता है और दूसरा है सुकून यानी जज्म की वजह से हमें इनको खींचना पड़ता है। फिर मद की 6 टाइप्स हैं, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद लीन लाजिम, मद आरिज, मद लीन आरिज। इनमें से दो हैं हमजा की वजह से, चार हैं सुकून की वजह से। यहां तक आ गया होगा समझ आपको? तो हमजा की वजह से कौन कौन से मद होते हैं? मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल। तो इनमें रीजन बनेगा हमजा। आप याद रखना, जब भी मद मुत्तसिल और मुनफसिल होगा तो आपको ये सोचना है यहाँ पे हमजा की वजह से मद होगी। अब कैसे होगी, क्या होगी, वो डिटेल में बताऊंगा। ये मैंने लिखा है। मद मुत्तसिल को हम समझते हैं पहले। मुत्तसिल का मतलब होता है, पहले मुत्तसिल को समझिए आप। मुत्तसिल लफ्ज को आप समझिए। मुत्तसिल का मतलब होता है मिला हुआ। मुत्तसिल मीन्स मिला हुआ यानी अटैच्ड, ठीक है। मैं लिख के रखूंगा यहाँ पे, मुत्तसिल का मतलब होता है मिला हुआ, यानी जो अटैच्ड हो, साथ ही, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होता है, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा जो है ना उसी कलमे में होता है, मतलब मिला हुआ होता है इसके साथ। हुरूफ मद्दा होगा, अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ गया। हमजा दो टाइप्स का हो सकता है, एक तो हमजा इस टाइप का हो सकता है, दूसरा हमजा जो है अलिफ की सूरत में भी आ सकता है अगर उसके ऊपर कोई हरकत हो। तो हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा आ गया और वो इसी कलमे में हो, क्या हो? इसी कलमे में हो। कलमा मीन्स वर्ड, सेम वर्ड में हो, जिस वर्ड में हुरूफ मद है उसी वर्ड में हमजा भी हो, तो उधर जो मद होगी वो मद होगी मद मुत्तसिल। उधर जो मद होगी वो मद मुत्तसिल होगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये है हमारे पास, देखिए हदाइक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दाल जबर दा है, ये हुरूफ मद है कि नहीं? हुरूफ मद HM लिखूंगा मैं, हुरूफ मद। उसके बाद देखो ये हमजा है ना, ये हमजा है, ठीक है। आप देखना है हुरूफ मद के बाद हमजा सेम कलमे में है, सेम वर्ड में है या नहीं है? सेम में है, माशाल्लाह। जब भी हुरूफ मद के बाद हमजा सेम वर्ड में होगी तो हम वहां पे जो मद होगी वो मद होगी मद मुत्तसिल। मुत्तसिल से आप मिला हुआ याद रख सकते हैं, यानी कि हमजा हुरूफ मद के बाद सेम वर्ड में होगा, वहां पे मद मुत्तसिल होगा। इस तरह यहाँ पे दूसरा इसको हम पढ़ेंगे हदाइक, यहाँ पे हमने मद की। इस तरह हमारे पास जा, यहाँ पे हुरूफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर है ना, तो हो गया अलिफ मद्दा, तो हुरूफ मद्दा आ गया। ये एम लिखूंगा मैं, अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के बाद ये हमजा है। आप बताओ ये हमजा इसी कलमे में है या दूसरे में है, यानी इसी वर्ड में है या दूसरे? यहाँ भी कौन सी मद होगी फिर? यहाँ पे मद कौन सी होगी? मद
मुत्तसिल होगी। मद मुत्तसिल का अपोजिट है मुनफसिल, दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे हुर्फ मद्दा के बाद हमजा आएगा, लेकिन वो इसी कलमे में नहीं होगा, वो दूसरे में होगा। क्या होगा? दूसरे कलमे में होगा। यहाँ पे सेम कलमे में होगा, वन में ये होगा, वन में ये भी होगा। ये वन में, इधर ये वन में होगा, ये हमजा जो है ये टू, कलमा नंबर टू में होगा, दूसरे वर्ड में होगा। अच्छा पहले बताइए मुझे, कलमा किसको बोलते हैं? कलमा किसी भी बा माने लफ्ज को कहते हैं, या किसी भी वर्ड जिसका मीनिंग हो। अगर हुरूफ हुरूफ जब मिलते हैं ना आपस में, तो वर्ड बनता है, अगर उनका मीनिंग हो तो वर्ड बनता है। ठीक है। अब देखिए आप, मद मुनफसिल में क्या होता है? हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ये है बीमा, मीम अलिफ जबर मा, ये है हुरूफ मद्दा। कौन सा हुरूफ मद्दा है? अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा है। ठीक है। अलिफ मद्दा के बाद ये हमजा है, क्योंकि अलिफ पे जब हरकत होगी तो ये क्या बन जाता है? ये हमजा बन जाता है, तो ये हमजा है, हुरूफ मद्दा है, उसके बाद हमजा है। लेकिन बताओ, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा जो है वो इसी कलमे में है या दूसरे में? सेकंड वर्ड में, माशाअल्लाह। तो अब ये मद्दे मुत्तसिल नहीं होगा, अब ये मद्दे मुनफसिल होगा। मुनफसिल का मतलब होता है फासला, गैप। फसल का मतलब आप रखिए याद, गैप। यहाँ पे मैंने कैप लिख दिया, गैप। या आप इसको कह सकते हैं डिटेचड मद, ये डिटेच होता है उससे, यानी मिला हुआ नहीं होता है, वो अटैच होता है, ये डिटेचड होता है। ठीक है। तो याद रखना है, हुर्फ मद के बाद हमजा इसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा, दूसरे कलमे में हो तो मद मुनफसिल होगा। अब मैं इन वर्ड्स पे आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे यहाँ पर है जीम या जेर, जी इसको या के साथ मिलाया जाएगा, जीम या जेर जी, हो गया या मद्दा। ठीक है, या मद्दा, वाई एम लिखूंगा मैं, या मद्दा प्लस इसमें हमजा है, ये हमजा इसी कलमे में है, तो आप कौन सी मद होगी? मद मुत्तसिल होगी यहाँ पे भी। इस तरह है वाव लाम जबर वल, लाम खड़ा जबर ला, वल्ला। ये खड़ा जबर मैंने कहा था, खड़ा जबर किसके इक्विवेलेंट होता है? अलिफ मद्दा के बराबर होता है। वेरी गुड, क्योंकि लाम अलिफ जबर ला और लाम खड़ा जबर ला में सेम साउंड निकलता है। तो ये हो गया अलिफ मद्दा, ए एम हो गया अलिफ मद्दा प्लस। देखिए अलिफ मद्दा के बाद हमजा है, हाँ हमजा है। अब ये इसी कलमे में है दूसरे में? इसी कलमे में है, तो अब जो है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये मद्दे मुत्तसिल होगा, हम पढ़ेंगे वल्लाई। ठीक है। मतलब खींच के पढ़ने हैं। कितना खींच के पढ़ने हैं? मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल को हमें खींच कर पढ़ना है, लेकिन कितना खींच कर पढ़ना है? ढाई अलिफ, 2.5 अलिफ। ठीक है। और ढाई अलिफ होता है बराबर 5 हरकत के बराबर, क्योंकि एक अलिफ कितने बराबर होता है? 2 हरकत के। एक अलिफ होता है 2 हरकत के, दो हो गए 4 के, ढाई हो गए 5 के बराबर। ठीक है। ढाई अलिफ हो गए 5 के बराबर, तो ढाई अलिफ यानी 5 हरकत के बराबर। ढाई अलिफ का मतलब हम एक उंगली खोलेंगे आराम से, फिर दूसरी खोलेंगे, फिर तीसरी आधी खोलेंगे, इतना हम खींचेंगे इसको, इन दोनों को, मद मुत्तसिल को भी मुनफसिल को भी। जैसे हदाइक, आप ट्राई कीजिए, हदाइक, तो यहाँ पे खींचिए इस तरह। जा, ढाई अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। जी आ, इसको पढ़ने में हो सकता है कि इसको मिस्टेक हो, यहाँ पे जीम और या मिलाना है, जीम को या के साथ, इस तरह यहाँ पे खींचना है। वल्ला ई। ठीक है। अब देखिए, सीन या जेर सी, ये हो गया या मदा, या मदा। ठीक है। और इसके बाद हमजा है, ये हमजा इसी कलमे में है ना, तो हमजा इसी कलमे में होगा। अब क्या होगा ये? यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी मद्दे मुत्तसिल होगा, और कितना खींचेंगे? ढाई अलिफ तक, यानी 5 हरकत तक। सी अत, पहले आपको उंगलियों पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। सी अत, इसी तरह यहाँ पे लाम खड़ा जबर ला, ये हो गया अलिफ मद्दा के बराबर प्लस हमजा, कितना हमजा?
ہے حمزہ सेम कलमे में है दूसरे में, हमजा सेम कलमे है, तो हम पढ़ेंगे उलैइक, यहाँ पे भी हम खींचेंगे 2.5 अलिफ तक, 2.5 अलिफ। ये आ गया समझ। इस तरह मद मुनफसिल है, मद मुनफसिल में हमें देखना है हुरूफ मद के बाद हमजा वो इसी में है कि दूसरे में, दूसरे में अगर होगा तो मद मुनफसिल होगा। जैसे यहाँ पे वमा, ये है अलिफ मदा, ठीक है, अलिफ मदा, और इसके बाद देखिए ये है हमजा, ये अलिफ मदा के बाद हमजा जो है वो सेम वर्ड में है दूसरे में, सेम में नहीं है, वमा अलग वर्ड है, उरीदु अलग वर्ड है, उरीदु में हमजा है। तो यहाँ पे जो मद होगा वो मद मुनफसिल होगा, ये वाला मद। हम पढ़ेंगे वमा उरीदु, खींचेंगे इसको भी 2.5 अलिफ। इस तरह वमा असाबका, यहाँ पे अलिफ मद्दा है, देखिए वमा में ये अलिफ मद्दा है, उसके बाद देखिए ये हमजा है, अलिफ के ऊपर जब हरकत होगी तो हमजा होगा ना, तो हमजा है, लेकिन ये हमजा सेम कलमे में नहीं है, ये दूसरे कलमे में। तो अब जो ये मद होगी ये मद मुत्तसिल नहीं होगी, मद मुनफसिल होगी। हम पढ़ेंगे वमा असाबका, इस तरह है, जाल अलिफ ज़बर जा, अलिफ मद्दा है, तो इसके बाद हमजा है ये दूसरे कलमे में, माजा, माजा अराद, ऐसे ही यहाँ पे ततु बा, बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ मद्दा, फिर है इला, ततु बा इला, ठीक है। इस तरह है फमा, फमा जो है ये एक कलमा है, यहाँ पे अलिफ मद्दा है, उसके बाद हमजा है मगर हमजा दूसरे कलमे में है, फमा आमना, तो मद मुनफसिल होगा यहाँ पे। वमा आताकुम, यहाँ पे अलिफ मद्दा है, उसके बाद हमजा दूसरे कलमे में है तो मद मुनफसिल होगा। समझ आ गया होगा ये चीज। ये जो नीचे मैंने एग्जांपल्स दी या ऊपर दी, ये सब कुरान करीम से एग्जांपल्स हैं, लिखा भी है, रेफरेंस लिखा हुआ है। अगर ठीक है एक बार फिर बताता हूँ, मध्य एक मद की दो टाइप्स हैं, एक है मध्य मुत्तसिल, दूसरे मुनफसिल। फिलहाल 6 टाइप्स हैं, 2 होती हैं ड्यू टू हमजा, 4 होती हैं ड्यू टू सुकून यानी जज्म। हमजा की वजह से 2 मद होती हैं, एक मध्य मुत्तसिल, दूसरी होती है मध्य मुनफसिल। मध्य मुत्तसिल, मुत्तसिल का मतलब होता है मिला हुआ, मिला हुआ का मतलब ये है कि हुरूफ मद के बाद हमजा इसी कलमे में हो, यानी जिस वर्ड में हुरूफ मद है उसी वर्ड में हमजा भी होना चाहिए, तो उससे जो मद बनेगी वो मद बनेगी मद मुत्तसिल, ठीक है। जैसे ये है हुरूफ मद्दा है अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले जबर है ना, ये हो गया अलिफ मद्दा, उसके बाद हमजा है, वो हमजा इसी कलमे में है, हाँ इसी में है, अगर इसी में होगा हुरूफ मद्दा के बाद तो वो बन गया मद मुत्तसिल। अगर इसका अपोजिट होगा, यानी हुरूफ मद्दा तो है उसके बाद हमजा है मगर वो सेकंड कलमे में, उसके बाद वाला जो वर्ड है उस वर्ड में हमजा है, तो उस वक्त जो है ना वो मद होगी मद मुनफसिल। अब वर्ड को आप कैसे पहचानोगे, वर्ड को पहचानने का तरीका ये है कि उसमें ये होता है अलग मीनिंग होगा, होगा ठीक है, उसका अलग मीनिंग बनेगा, जिस चीज का अलग मीनिंग बनेगा वो अलग वर्ड होता है। चलिए हदाइक, हदाइक का मतलब होता है बाग, तो ये एक ही वर्ड है। जा, जा भी एक ही वर्ड है, जा का मतलब होता है आया, जी आ ये भी उसी में से एक फेल है। तो इनमें से हुर्फ मद्दा भी वही है और हमजा भी उसी में है, सेम में है। इसके अपोजिट में अगर देखेंगे आप, यहाँ पे हुर्फ मद्दा एक कलमे में है, मिसल वमा, यहाँ पे अलिफ मद्दा है, यहाँ पे अलिफ मद्दा है, लेकिन देखिए अलिफ मद्दा तो है, अलिफ मद्दा इधर है, हमजा किधर है, हमजा दूसरे में है, ठीक है। तो ये बनेगा वमा उरीदु। आप कोई कहेगा कि और मुझे पहचानना है कि इन वर्ड्स को मैं कैसे पहचानूं, तो उसके लिए अरबिक लेक्चर्स देखिए, इंशाल्लाह उसमें आप सब कुछ इजीली समझ जाएंगे। ये चीजें आपको पता चलेगा कि वमा क्या है, अस्वाबा का क्या है, जिस तरह जा यहाँ पे फेल है, हदाए का इसम है, तो ये चीजें आपको पता चल जाएंगी, आप इजीली फिर इसको पहचान लेंगे। फिलहाल मैंने 2 चीजें बताई, मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल। मद मुत्तसिल में क्या होता है, हुर्फ मद के बाद हमजा
सेम वर्ड में होता है। मद मुनफसिल में हुर्फ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में होता है। खींचना दोनों को बराबर है, डाई एलिफ यानी 5 हरकत के बराबर। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वैसे आप इसको फिलहाल ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं। अगर आपको हुर्फ मद के बाद हमजा मिल गया, या तो वो हुर्फ मद के बाद जब हमजा आ गया, या तो वो मद मुत्तसिल होगा या मुनफसिल होगा। ये याद रखना है जो मैं कह रहा हूँ। हुर्फ मद के बाद जब हमजा आएगा, या तो वहां पे मद मुत्तसिल होगा या मुनफसिल होगा, क्योंकि हमजा इन्हीं दो में आता है। अगर आपको हमजा के ऊपर ये वाली मद मिल गई, ये बड़ी वाली मद जो हदायक में जो आप देख रहे हैं, तो आप समझ लें ये मुत्तसिल है। यानी यहाँ पे हुर्फ मद के बाद हमजा सेम कलमे में। अगर हुर्फ मद के बाद देखो, ये है बिमा उनजिला में हमजा आया, लेकिन मद आपको ये छोटी थोड़ी मिली। देखिए ये छोटी है इससे। इन दो को कंपेयर करें, हदाइका में और बिमा उनजिला में, फर्क है ना। ये वाली छोटी अगर छोटी मिल गई तो आप सोचना ये मुनफसिल है। मगर फिर मैं कह रहा हूं कहां पे, जब हुर्फ मद के बाद क्या हो, हमजा हो। वरना आप उधर देखेंगे हुर्फ मद के बाद अगर सुकून हुआ तो उधर भी ऐसी बड़ी मद मिलेगी, लेकिन उसको आप मद मुत्तसिल नहीं कहेंगे क्योंकि वहां हमजा नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जो हम नेक्स्ट पे आते हैं, मद लाजिम। ये थर्ड टाइप है। सुकून की वजह से जो मद होती हैं, सुकून की वजह से जो मद हैं वो 4 होते हैं। यानी अभी तक हमने 2 पढ़े, अब हमें और 4 पढ़ने हैं। यही तीसरी मद है मद लाजिम, चौथी है मद लीन लाजिम, पांचवी है मद आरिज, छठी है मद लीन आरिज। इन चारों की चारों में क्या होगा, इन चारों की चारों में जज्म की वजह से मद होगी। ठीक है। मद लाजिम, मद लाजिम को समझिए। यहाँ भी हुरूफ मद्दा के बाद जो यहाँ पे देखना है कि किसकी वजह से मद होगा, सुकून की वजह से। तो हुरूफ मद्दा के बाद अगर सुकूनी असली आ जाए, सुकून असली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो जज्म होती है ये वाली, या ऐसे जज्म लिखी जाती है। दूसरा है तशदीद। तशदीद भी सुकून असली है। सुकून असली उस सुकून को बोलते हैं, सुकून असली उस सुकून को बोलते हैं, उस जज्म को बोलते हैं जो ना वक्फ में छूटे ना वसल में हम छोड़ें। यानी यह हर जगह पढ़ा जाएगा, चाहे हम वहां पे वक्फ करें, स्टॉप करें, या हम वहां पे स्टॉप के बगैर पढ़ें, उसको बोलते हैं सुकून असली। यानी वो वक्फ जो है ना वो हमेशा होगा, वसल में भी होगा वो सुकून, और वक्फ में भी होगा। ये वसल और वक्फ में बाद में आपको समझाऊंगा। वसल का मतलब होता है स्टॉप किए बगैर पढ़ना। मिसाल आपके पास अगर लिखा है, मिसाल अगर लफ्ज है हमारे पास ضالن या आल आना, देखिए लाम के ऊपर जज्म है। चाहे आप यहाँ पे स्टॉप करें तब भी ये आल है, चाहे स्टॉप ना करे तब भी ये आल है। तो इसका मतलब इसका सुकून जो है वो असली है। इस तरह तशदीद भी एक किस्म का सुकून होता है, क्योंकि वहां भी हम ठहरते हैं। कैसे ठहरते हैं, देखिए अगर तशदीद वाला हर्फ होगा ना, तशदीद वाले हर्फ में हम क्या करते हैं। मिसाल ये हर्फ होता है असल में, ये होता है असल में दौद अलिफ लाम जबर, दौल लाम दो जबर लन, दौलन। तो ये एक सुकून छुपा होता है तशदीद में, इसलिए तशदीद को भी सुकून असली बोलते हैं। ठीक है। तो ये सुकून असली अगर हुर्फ मद के बाद आ गया तो हम वहां पे क्या करेंगे, वहां पे जो मद होगी वो मद होगी मद लाजिम, मद लाजिम। इस तरह यही सुकून असली अगर हुर्फ लीन के बाद आ गया। यहाँ पे हुर्फ मद की बात हो रही थी। हुर्फ मद 3 है, अलिफ मद वाव मद या मद। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद। इसी तरह अगर हुर्फ लीन के बाद यही सुकून असली आ गया, उसमें सिर्फ जज्म ही इतना आएगा, तब जो मद बनेगी वो मद बनेगी मद लीन लाजिम। क्यों, यहाँ पे हुर्फ लीन के बाद आया। ऊपर आया तो हुर्फ मद के बाद तो मद बनी थी मद लाजिम। यहाँ आया हुर्फ लीन के बाद सुकून असली, तो यहाँ बन गई मद लीन लाजिम। अब मद लाजिम की एग्जाम्पल में दूंगा। दौद अलिफ जबर दौ, ये क्या है, अलिफ मद्दा है ना, ये अलिफ मद्दा। दौद अलिफ जबर दौ जो है ये अलिफ मद्दा है, ये है अलिफ मद्दा। ठीक है, एम प्लस। देखिए लाम के ऊपर जो है ना
تشدید ہے. تشدید کیا ہے؟ یہ سکون اصلی ہے نا، اصلی سکون، کیونکہ تشدید اور جزم ہوتی ہے سکون اصلی. ٹھیک ہے. اب جو یہاں پہ مد بنے گی وہ مد کون سی ہوگی؟ مد لازم ہوگی، کیونکہ حروف مدہ کے بعد، الف مدہ کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے. ہجے، اس کے ہجے کا طریقہ سیکھیے، خیال رکھیے گا. ہجے اس طرح کرنا ہے: ضاد، الف، لام، زبر، ضال، تین کو ملانا ہے: ضاد، الف، لام، زبر، ضال، لام، دو زبر، لن، ضالن. لام کو دو بار پڑھنا ہے، یہ خیال رکھنا. آدھے پڑھتے ہیں ہم ضالن، ضالن نہیں، ضالن، ضالن، ایسے. ہاں، پہلے ضاد الف لام زبر، ضال، ایسے بنے گا یہ مثال: ضاد الف لام زبر، ضال، پھر ہے لام، دو زبر، لن، ضالن. تو یہاں پہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا تو یہ مد لازم ہو گیا. ایسے ہی یہاں پہ دیکھیے، اس کے ہجے میں بھی خیال رکھیے گا. یہ بنے گا دال، الف، با، زبر، داب، با، زبر، با، داب. یہاں پہ جماؤ بھی ہوگا وہ، کیونکہ حروف قلقلہ میں اگر تشدید ہو تو ان میں جماؤ ہوتا ہے. تا، دو زیر، تین، بنے گا تین. تو با کو دو بار پڑھنا ہے: دابتن. جو آپ پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں پہ لام کو دو بار پڑھنا ہوتا ہے. اکثر پڑھتے ہیں ضالین، ضالین نہیں، ضالین. یہاں پہ یہ جو ہے کھڑا زبر ہے الف مدہ. ٹھیک ہے، کھڑا زبر ہے الف مدہ، یہ ہے الف مدہ. ٹھیک ہے. الف مدہ کے بعد لام کے اوپر یہ جزم ہے، یہ ہو گیا سکون اصلی. ٹھیک ہے، سکون اصلی، یہ ہو گیا تھا الف مدہ. اب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا تو یہ بھی مد لازم ہوگا. جیسے حمزہ، لام، کھڑا زبر، آل. ٹھیک ہے، حمزہ، لام، کھڑا زبر، آل، حمزہ، کھڑا زبر، آل، نون زبر، نہ، آل، آنا. سمجھ آیا یہ؟ اب دیکھیے یہاں پہ کس ہجے کریں گے. کوئی کرے گا انمیوٹ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ذرا آپ کیجیے اس کو، کیجیے. حمزہ، ذال، کھڑا زبر، آذ، ذال، زبر، ذا، آذ، کاف، زبر، کا، آذ، کا، را، یا زبر، روی، آذ، روی، نون زیرنی، ذکرین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اس کو آپ ہجے کے وقت کیوں نہیں پروناؤنس کر رہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علامت مد ہے، یعنی یہ سائن ہے، یہ سائن دکھا رہا ہے کہ یہاں پہ مد ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی حرکت تھوڑی ہے، زبر زیر پیش تھوڑی ہے جس کا ہم نام لیں گے، نہ یہ حرف ہے، بلکہ صرف یہ مد کا سائن ہے. تو یہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ مد کرنی ہے. پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ مد کون سی کرنی ہے، تو اس کے مطابق ہم اس کو اسٹریچ کریں گے، کھینچیں گے، پرولونگ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کا نام ہم نہیں لینا، یہ ہے کون، اس کا نام ہم لیں گے، یہ صرف سائن ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ہجے کرے کوئی. جی پڑھیے یہ حمزہ، والا. جیم، الف، نون زبر، جان، نون
دو پیش نون جان اللہ آپ نے اچھا پڑھا، لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے، پہلے جا نہیں کرنا ہے، جا جی مل زبر جا ہے نا، جا اگر آپ پڑھیں گے تو آپ گناہ کر رہے ہیں، جان، ہاں نون پہ پہنچ کے آپ گناہ کریں کیونکہ نون مشد، جان نون، ٹھیک ہے، جان نون، ایسے ہی یہاں پہ اور کوئی ہے، میم دال پیش مد ہا الف میم زبر ہا، یہاں میم مشد ہے، اس میں گننا بھی ہوگا، مد ہا میم زبر میں، مد ہا میں، یہ یاد رکھنا ہے جو مد لازم اور مد لین لازم ہے، ان کو ہم تین الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ دیکھیے پچھلے والے ہم نے ڈائی الف یعنی 5 حرکات کے برابر کھینچا تھا مد متصل اور منفصل کو، ادھر مد لازم اور لین لازم جو ہے اس کو ہم 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم پڑھیں گے مدہام متانی، ایسے یہاں پہ اتحاد، یہاں پہ دو مد، ایک ہے الف مدہ کے بعد یہاں پہ سکون اصلی جیم پہ، پھر ہے واو مدہ کے بعد نون پہ سکون اصلی، ہم پڑھیں گے حمزہ زبر ا، تا پیش تو، اتو، ح الف جیم زبر حاج، اتو حاج، جیم واو نون پیش جون، اتو حاجون، نون یا زیر نی، اتحاجونی، جیم بھی 2 بار، نون بھی 2 بار، نون مشد میں غنہ بھی ہوگا یہاں پہ، یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو۔ تو مد لازم کے ایگزامپلس آ گئی، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی، اب یہی حرف لین کے بعد اگر سکون اصلی آ گیا تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین یا زبر آئی، یہ کیا ہے، یہ یا لین ہے، یہ یا لین ہے، تو جب یہ یالین ہے، یالین کے بعد دیکھو کیا آ رہا ہے، اگر یہ یالین ہے، یہ ہے یا لین، تو یالین کے بعد نون پہ کیا ہے، سکون اصلی، جب سکون اصلی آ گیا ہے حرف لین کے بعد تو یہ بن گیا مد لین لازم، اس کو بھی ہم کھینچیں گے 3 الف یعنی 6 حرکات، عین یا نون زبر عین، ٹھیک ہے، اس طرح غین یا نون زبر غین، اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں جب حروف مفردات پڑھائے تھے تو میں نے کیوں کہا تو کچھ کو 3 الف کھینچنا ہے، کچھ کو 1 الف کھینچنا ہے، وہاں پہ اب اس پہ بھی ہم غور کریں گے آگے کہ کہاں پہ کون سی مد بنتی ہے، کہاں پہ کون سی نہیں بنتی ہے، کہیں پہ حروف مدہ بنتا ہے وہاں پہ 1 الف کھینچیں گے، جہاں پہ مد لازم بنتی ہوگی وہاں پہ 3 الف کھینچیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں تک سمجھ آ گئے، یہ 2 مد کی ٹائپس آ گئی سمجھ، مد لازم اور مد لین لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو گئے تو مد لازم، اور حرف لین کے بعد سکون اصلی آ گیا تو مد لین لازم، سر یہاں تشدید نہیں ہو سکتی، اس میں ایگزامپل جو ہے نا یہی 2 ہیں ٹوٹل قرآن میں، حرف لین کے بعد جو سکون اصلی آیا ہے نا، پہلے تو ایک ہی ہے، ایک ہی ایگزامپل ہے، عین ہی لفظ آیا ہے حرف مقطعات، وہاں پہ پڑھنا ہے، اور اس کے ایگزامپلز ہی نہیں ہے، مجھے کہیں نہیں ملی، اگر آپ کے پاس ہو، اس میں تشدید نہیں آتی، ورنہ میم نون جسٹ پہنچے پر ہی کریں گے ان ہجے، ہاں گنہ میم اور نون ساکن میں ہجے کے وقت جب نون کی تشدید پڑھیں گے تب کریں گے، پہلے نہیں کریں گے، مثال جیم الف نون زبر جان، ابھی گنہ نہیں ہوگا، نون 2 پیش نون، اب کریں گے جان نون، یہ جو آواز میں کر رہا ہوں یہ گنہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آ گیا ہوگا آپ کو سمجھ، اب آتے ہیں نیکسٹ ٹائپ پہ، وہ بھی ایزی ہے، نیکسٹ ٹائپ ہے حروف مد عارض اور مد لین عارض، عارض کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری، تو یہاں پہ ٹیمپریری انوالومنٹ ہوگی کس کی، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون، یہاں پہ اصلی تھا یہاں پہ عارضی، اصلی میں نے کہا جو وقف میں بھی پڑھا جائے وصل میں بھی پڑھا جائے، عارضی سکون جو ہوتا ہے جو وصل میں یعنی جب ملا کر پڑھتے ہیں تو ادھر وہ سکون کو نہیں ہوتا ہے،
मिसाल ये था हमारे पास यतसाअलूना, तो यहाँ पे नून पे मत है कोई जज्म, लेकिन आरजी सुकून कब बनता है, जब वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए। जब हम यहाँ पे वक्फ करते हैं यतसाअलून, नून को हम जज्म बना देते हैं, नून पे इस वक्त मत है जज्म, लेकिन जब हम वक्फ करेंगे, वक्फ का मतलब जब हम रुकेंगे, ये जो अलामत आती है ना, ये आयत जैसी, वहां पे हम रुकते हैं और लास्ट वाले हर्फ को हम जज्म लगाते हैं। इसके अपने रूल्स हैं, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिलहाल तो ये जो है ना, इसमें जो ये जज्म है ये असली नहीं है, ये आरजी, ठीक है, ये वाली आरजी। जब हुर्फ मद्दा के बाद यही आरजी सुकून आ गया तो ये मद होगी मद आरिज। इस तरह हुर्फ लीन के बाद अगर यही आरजी सुकून आ गया, ये था खौफिन, यहाँ पे मत सुकून था, जब हम रुके यहाँ पे तो ये बन गया खौफ, हमने इसको साकिन कर दिया। जब साकिन कर दिया तो ये सुकून जो है ना, ये असली नहीं है, ये क्या है, ये आरजी सुकून है। जब हुर्फ लीन के बाद, यहाँ पे लीन के बाद आ गया, क्योंकि वाव लीन है, वाव साकिन से पहले जबर है, वाव लीन है। हुर्फ लीन के बाद जब आरजी सुकून आ गया तो अब जो मद होगी वो मद होगी मद लीन आरिज। समझ आ गई है? मद आरिज होगी हुर्फ मद के बाद आरजी सुकून आ जाए, मद लीन आरिज होगी हुर्फ लीन के बाद आरजी सुकून आ जाए। अब इन मद आरिज और मद लीन आरिज को कितना खींचेंगे, इनको भी हम 3 अलिफ यानी 6 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब मैं एग्जांपल्स पे आता हूं, देखिए ये है या उलिल, यहाँ पे अलिफ मद है, अलिफ मद के बाद हमजा है, जरा बताइए यहाँ पे कौन सी मद होगी, मद मुत्तसिल हो गई यहाँ पे, हुरूफ मद के बाद हमजा इसी कलमे में। इसके बाद है या उलिल अलबाबी, यहाँ पे अलिफ मद है, बा अलिफ ज़बर बा, ये अलिफ मद है। उसके बाद बा की नीचे जेर है, अलबाबी। अब इसको जब सुकून करेंगे तो अलबाब बनेगा वक्फ में, अलबाब यहाँ पे जज्म पड़ेगी, यानी ये साकिन हो जाएगा, लेकिन इसका जो सुकून है वो असली नहीं होगा, वो आरजी होगा, इसका सुकून आरजी होगा। तो ये आरजी सुकून जब हुर्फ मद के बाद आ गया तो मद आरिज बन जाएगी। हम पढ़ेंगे या उलिल अलबाब। जब वक्फ में हम पढ़ेंगे तो वक्फ में हम खींचेंगे अलबाब, अगर हम वक्फ नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ हुर्फ मद कोई एक अलिफ खींचेंगे, ठीक है। अलबा अलबाबी, अलबाबी। अब जब वक्फ करेंगे तो अलबाब, इस तरह यतसाअलूना, ये था वसल में, लेकिन जब हम इसको वक्फ करेंगे तो वाव मद के बाद नून पे आरजी सुकून आ गया। जब आरजी सुकून आ गया तो ये बन गया मद आरिज। तो हम पढ़ेंगे यतसाअलून, एक तो यहाँ पे मद मुत्तसिल भी है, फिर यहाँ पे कौन सी मद बन गई, मद आरिज। इस तरह रब्बिल आलमीन, हमारे पास लफ्ज है रब्बिल आलमीन, मीम याजिर मी, अलिफ मद है, या मद है, ठीक है, या मद के बाद नून है, इसके जबर है। लेकिन जब हम इस पे वक्फ करेंगे, ये जो आयत दी हुई है, जब हम यहाँ पे रुकेंगे हम पढ़ेंगे रब्बिल आलमीन, तो ये बन गया मद आरिज। अब हम यहाँ पे खींचेंगे 3 अलिफ तक, रब्बिल आलमीन। ऐसे ही नीचे मद लीन आरिज, हुर्फ लीन है, हुर्फ लीन के बाद यहाँ पे आरजी सुकून है, क्योंकि असली नहीं है, ये वक्त की वजह से साकिन होगा, खौफिन था, अभी हम नहीं खींचेंगे। जब हम वक्फ करेंगे तो ये बन जाएगा खौफ, अब हम खींच के पढ़ेंगे खौफ, ऐसे ही ओ रईश। यहाँ पे या लीन है, या लीन के बाद इसमें हम वक्फ की वजह से साकिन करेंगे तो बनेगा ओ रईश। यहाँ तक समझ आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए जी, अब आपका क्वेश्चन आया था कि फिर इनमें मिसाल ये भी आपस में इनके कुछ है ना बराबर खींचे जाते हैं। अगर ये मद मुत्तसिल है तो इसके ऊपर क्यों छोटा मद बनाए, कहाँ छोटा मद बनाए, ये मद, सॉरी ये वाला मद मुनफसिल है, सॉरी ये वाला मुनफसिल, ये मुझे गलती हो गया। ये या जो है ना, ये अलग कलमा है, या का मतलब होता है ए, उलिल अलबाब होता है, फिर अलग इस अलग कलमा है। ये मद मुनफसिल है, ये वाला मुत्तसिल है, या तसाअलून। आपका क्वेश्चन आया था, जो आपने क्वेश्चन भेजा था कि हम फिर ये अलग अलग क्यों है अगर बराबर खींचना है, तो इसकी वजूहत ये है, जब हम पढ़ेंगे ना मद की तफसील, या हम जब लहने जली पढ़ेंगे तो बड़ी गलतियां पढ़ेंगे। अगर इन मद
मुनफसिल में अगर थोड़ा कम भी होगा ना डाई से, एक अलिफ भी खींचेंगे तो वो चलेगा, लेकिन मद मुत्तसिल को नहीं चलेगा। इस तरह जो है मद लाजिम में भी अगर कुछ कमी होगी तो वहां भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये मद आरिज जो है इसको अगर हम एक अलिफ भी खींचेंगे ना मद आरिज को, ये भी चलेगा, लेकिन मद लाजिम को अगर एक अलिफ खींचेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो ये चीजें हैं। अब मैं लास्ट पे मैंने फिर एक बार ये बता देता हूँ, एक बार ये कवायद, कल फिर इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। मद का माना होता है खींचना, इसके दो असबाब हैं, हमजा और सुकून। तो हमजा की वजह से दो टाइप्स के मद होते हैं, सुकून की वजह से चार टाइप्स के मद होते हैं, टोटल हो गए 6। मद मुत्तसिल होता है जब हुर्फ मद के बाद हमजा इसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा। हुर्फ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो, अनदर वर्ड में हो तो मद मुनफसिल होगा। खींचेंगे दोनों को बराबर, यानी डाई अलिफ के बराबर, यानी 5 हरकत के बराबर। मद लाजिम होता है जब हुर्फ मद के बाद सुकून असली हो, यानी वो जज़म या तशदीद हो। मद लीन लाजिम होता है जब हुर्फ लीन के बाद सुकून असली हो, यानी जज्म ही इतनी आएगी यहाँ पे। मद आरिज होता है जब हुर्फ मद के बाद सुकून आरजी हो। सुकून आरजी उसको कहते हैं जो वक्त की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए। मद लीन आरिज होता है जब हुर्फ लीन के बाद सुकून आरजी हो। तो यहाँ भी हुर्फ लीन के बाद वक्त की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा होमवर्क देता हूँ, अलिफ से लेकर या तक आप इस पे गौर करेंगे। अलिफ बा, बा में क्या है, अलिफ से पहले जबर है तो यहाँ पे अलिफ मदा होगा, ऐसे ही आपको गौर करना है। दाल में दाल अलिफ लाम से बाद दाल, यहाँ पे अलिफ मदा के बाद लाम पे सुकून असली है, यहाँ पे कौन सी मद होगी, यहाँ पे मद लाजिम होगी। ये चीजें आप कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ पे कितना खींचना है, तभी आपको याद रहेगा कि क्यों हम खींचते थे क्यों नहीं खींचते थे। तो चाहे तो काश आप ऐसा करते। मैं चाहता हूँ कि अगर आप 10-10 एग्जाम्पल हर मद की निकालेंगे कुरान से, एक की नहीं निकलेगी मद लीन लाजिम की, बाकी की आप 10-10 एग्जाम्पल निकालें। देखते हैं आप में से कौन सीरियस है, वो भेज दीजिएगा फिर हमें पर्सनल में। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।